Yes, welcome. This is Meenu Kalra. This is Vishal Kalra. Negotiable Instrument Act, checks and CTS, that we are going to take as topic. Negotiable Instrument Act 1881, it's an act in India dating from the British colonial rule. It's still in force, largely unchanged. Let's summarize the Negotiable Instrument Act. A promissory note is an unconditional undertaking written and signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person. एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग रिटन एंड साइंड बाय मेकर, वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो पे करेगा एक स्पेसिफिक सर्टेन सम सिर्फ एक व्यक्ति को या जिसे वो कहे उसे. It does not include a bank note or currency note. A bill of exchange is an unconditional written order signed by the drawer, directing a certain person to pay a certain sum of money to the specified person or to his order or to the bearer of the bill. यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर बना रहा है और वो दूसरे किसी स्पेसिफिक पर्सन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये अमाउंट पे करिए इस स्पेसिफिक पर्सन को या जिसे वो ऑर्डर करे उसे या जो भी बिल का बेयरर हो उसे. वेयर इज अ चेक is a bill of exchange drawn on a specified banker and payable only on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electric form. जहाँ तक चेक की बात है, ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो एक बैंकर पर ड्रॉ किया जा रहा है और इसे सिर्फ पेबल ऑन डिमांड ही किया जा सकता है. इसमें चेक की ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी शामिल है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी शामिल है. Whereas a bearer instrument is one which is expressed to be payable to its bearer on which has last endorsement in blank. bearer instrument जो है वो कहता है कि बेयरर को पेमेंट की जाए और उसे जिसे लास्ट इंडोर्समेंट की गई है इन केस वो ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट है. एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर इज द वन विच इज़ एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन. अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया shall be deemed to be inland instrument. inland instrument वो जो इंडिया में बना है और इंडिया के ही किसी रेजिडेंट पे ड्रॉ हुआ है, वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर. अगर कोई इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है. When the nature of an instrument is not clear, it is termed as ambiguous instrument. अगर इंस्ट्रूमेंट से पता नहीं चल रहा है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहलाता है. इन चोइटे इंस्ट्रूमेंट ये साइंड भी होता है, स्टैम्प्ड भी होता है, लेकिन होली या पार्शली ब्लैंक होता है. एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, these expressions in reference to promissory note or bill of exchange means on demand. After sight expression in case of promissory note means after presentment for sight, and in reference to bill of exchange means after acceptance, noting or pretext for non-acceptance. Maturity is the date of an instrument at which it is to be due. जब पेमेंट ड्यू होती है उस डेट को हम
मैच्योरिटी कहते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी। एनी इंस्ट्रूमेंट are at maturity on the third day after the day on which it is expressed to be payable। जिस दिन उसे पेबल होना है उसके तीसरे दिन हम कहेंगे बिल मैच्योर हो गया। नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ a negotiable instrument by one person to another in order to make the transferee the holder of the instrument। एक आदमी से दूसरे आदमी को जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करते हैं ताकि ट्रांसफरी इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाए, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन डिलीवरी पे भी हो सकती है, बाय एंडोर्समेंट हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी पार्टीज हैं? जो भी इसमें पर्सन इन्वॉल्व हैं, they must be capable of contracting। They may bind himself or be bound by making, drawing, accepting, endorsing, delivering and negotiation of the instrument। Minor is an exception। Minor वो person है जो दूसरों को बाउंड कर सकता है एक्सेप्ट हिमसेल्फ। एक एजेंट भी पार्टी हो सकता है। He can make, accept or endorse a negotiable instrument only if express authority has been granted to him by his principal। A banker under certain conditions may refuse payment of a check or is bound to dishonor a check when check is dishonored for insufficiency of fund in the account of a customer। It is treated as offense। जब आपके अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं और इस वजह से चेक डिसऑनर हुआ है, तो बैंक को उसे डिसऑनर करना पड़ता है। और इसमें जो पेनल्टी है वो है कि गिल्टी को पर्सन रिस्पॉन्सिबल मे बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन ऑफ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और विद बोथ। तो चेक के डिसऑनर के केस में ये पेनल्टीज़ हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपकी इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक डिसऑनर नहीं है। In case of negotiable instrument is considered to be discharged when rights and obligations or claims of all the parties are extinguished। Material alteration, if there is anything which is material to the instrument and there is some change or alteration, then legal effect of the instrument and the liabilities of the party will change as the basic nature has changed। An instrument is said to be dishonored by different ways। One, by non-acceptance। Second, non-payment of the instrument when duly presented। कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर तब हो जाएगा जब उसे पहला एक नॉन एक्सेप्टेंस मिले, दूसरा प्रॉपरली उसको प्रेजेंट किया गया है, ड्यूली प्रेजेंट किया है, एंड इट इज़ नॉट गेटिंग द पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नोटिस ऑफ द डिसऑनर इज सर्व बाय द होल्डर फॉर्मली अगेंस्ट द पार्टीज टू द इफेक्ट दैट इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। डिसऑनर का नोटिस सर्व करना होता है होल्डर को एक फॉर्मल वे में उन पार्टीज़ के अगेंस्ट, जिससे ये क्लियर हो जाए कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बिल है, वो डिसऑनर हुआ है बाय नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या नॉन पेमेंट की वजह से। इसके बाद उसमें नोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। Noting is the process of recording the facts and reasons of dishonor of a negotiable instrument by the notary public। Notary public reasons को, fact को record करता है। And protest is, it's a certificate issued by the notary public attesting the fact। attest कर रहा है वो उसको और लिख कर दे रहा है for the evidence
that the dishonor of a negotiable instrument is recorded upon the instrument. नोटिंग और प्रोटेस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि नोटिंग सिर्फ रिकॉर्ड कर रही है कि डिसऑनर हुआ है और उसके रीजंस क्या हैं। प्रोटेस्ट में आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है। इंस्ट्रूमेंट्स की जो पेमेंट हैं वो इंटरेस्ट एक स्पेसिफाइड रेट के साथ पे की जाती हैं। जब रेट मेंशन नहीं है तो ये 18% पर एनम के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। जब से वो इंस्ट्रूमेंट ड्यू है तब से उसको जो अमाउंट रियलाइज हुआ है तब तक। एज फार द राइट्स ऑफ पार्टीज आर कंसर्न, कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू मेक सर्टेन presumptions of consideration, date, time of acceptance, time of transfer, order of endorsements, stamps, and holder is a holder in due course. इन सब के बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है और अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता है। कॉम्पनसेशन डिसऑनर के केस में एज पर सेक्शन 117 ऑफ द एक्ट डिसाइड होगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? ट्रंकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक issued by a drawer at some point by the presenting bank and route to the paying bank branch. ये सिस्टम चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया या प्रोसेस है। इसमें इशू किया हुआ चेक फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमता है। एक्चुअली ये चेक जिस बैंक में प्रेजेंट किया जा रहा है वहाँ से पेइंग बैंक की ब्रांच तक की यात्रा करता है और क्लियर होता है। सीटीसी में चेक के स्थान पर क्लियरिंग हाउस इसकी इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो पेइंग ब्रांच को भेज देता है। इसके साथ इससे संबंधित सारी जानकारी जैसे MICR बैंड, इसका डाटा, प्रेजेंट होने की डेट, प्रेजेंट करने वाला बैंक, इन सब की डिटेल भेज दी जाती है। इस तरह से इस सिस्टम में एक्सेप्शंस को छोड़कर फिज़िकली इंस्ट्रूमेंट की एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। इससे इसकी कॉस्ट भी ख़त्म हो जाती है और लगने वाला समय भी कम हो जाता है। सो चेक प्रोसेसिंग ईजियर और कन्वीनियंट हो जाती है। वाई इन इंडिया? तो जैसे हमने कहा CTS जो है वो कलेक्शन ऑफ चेक के प्रोसेस को तेज़ करता है, कस्टमर को बेटर सर्विस देता है। तो इससे टाइम के कम लगने से, कॉस्ट के कम लगने से, रिकन्सिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के दूर होने पे, लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के दूर होने पे ये सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बैंक्स के पास RTGS एंड NEFT जैसे और भी फॉर्म्स हैं जिनके वो पेमेंट करवाता है। RBI ने ये इंटरबैंक और कस्टमर पेमेंट ऑनलाइन और नियर रियल टाइम करने के लिए ये सारा सिस्टम बनाया है। लेकिन चेक्स अभी भी एक प्रोमिनेंट मोड है पेमेंट्स का। RBI हैज़ डिसाइडेड देयरफॉर टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द चेक क्लियरिंग साइकिल को इम्प्रूव करना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। दैट इज़ द प्लेस वेयर CTS इज़ अ स्टेप टेकन बाय द बैंकिंग सिस्टम। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ऐड करना है, इंक्रीज़ करना है। CTS के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बैंक्स को भी, कस्टमर्स को भी, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स रैशनलाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बिजनेस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग, बेटर सर्विस, अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब इंक्लूडेड है। CTS एफिशिएंसी एनहांसमेंट का इनिशिएटिव बनकर आया है जो RBI का पेमेंट सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है बैंकिंग की, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का सही उपयोग हो पा रहा है। कॉस्ट कम आई है जो हम आगे और देखेंगे डिटेल में। IT का यूज़ किया गया है फॉर बेटरिंग द सर्विस, बेटरिंग द सिस्टम। CTS जो है
इम्प्लीमेंट हुआ है न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई 1 फरवरी 2008 से, 2011 से और 2013 से रिस्पेक्टिवली। सारा चेक सिस्टम MICR सिस्टम से CTS में चेंज हो गया है। ट्रेडिशनल चेक की प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यू कर दी गई है, जो कि MICR पे बेस्ड थी। न्यू अप्रोच क्या है? इसमें ग्रिड बेस्ड सिस्टम में पूरा नेशनल चेकिंग सिस्टम रोल आउट हो गया है। पहले 66 MICR चेक प्रोसेसिंग लोकेशंस थे, जिनको अब सिर्फ 3 ग्रिड्स में, दैट इज़ न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई, इनमें बदल दिया गया है। हर ग्रिड का प्रोसेसिंग और क्लियरिंग सर्विस सभी बैंक्स को जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उसको प्रोसेसिंग और क्लियरिंग प्रोवाइड करना उसकी जॉब, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी ब्रांचेस, वेदर दे आर स्मॉल और बिग, अर्बन और रिमोट, व्हाटसोएवर इज फॉलिंग अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ग्रिड वुड बी बेनिफिटेड। हम ग्रिड्स को के एग्जांपल्स ले लेते हैं। न्यू दिल्ली ग्रिड में NCR ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये सारे नॉर्थ के स्टेट्स आते हैं। मुंबई ग्रिड में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स आ रहे हैं। चेन्नई में सारे सदर्न स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। CTS के कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है? पहले जो स्पीड क्लियरिंग हो रही थी थ्रू प्रीवियस मेथड, प्रीवियस सिस्टम, CTS सिस्टम में इसको फास्टर कर दिया है चेक कलेक्शन को। पहले सिस्टम में आपके पेइंग बैंक ब्रांच का क्लियरिंग हाउस की लोकेशन में होना ज़रूरी होता था, लेकिन ग्रिड बेस्ड सिस्टम में ये सुपीरियर सिस्टम है। इसमें बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर होता है और आप उस ग्रिड लोकेशन के अंदर हैं या नहीं हैं, कि उस जोग्राफिकल एरिया में हैं या नहीं हैं, वो इसमें काउंट नहीं होता है। ग्रिड बेस्ड सिस्टम, दैट इज ग्रिड बेस्ड CTS सिस्टम, ऑल द चेक्स आर ड्रॉन ऑन बैंक ब्रांचेस। जो भी उस ग्रिड में आ रहे हैं उन्हें लोकल चेक्स कंसीडर किया जाता है और इस पे कलेक्शन चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि सेम ग्रिड में, चाहे वो डिफरेंट सिटीज़ में क्यों ना हो, इसमें कलेक्शन चार्जेस नहीं होते हैं। इसमें हम एक बार प्रोसेस को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेक इन CTS। इसमें जो बैंक की ब्रांच है वहाँ पर जो MICR बैंड है उसका डाटा और इमेज ऑफ चेक दोनों कैप्चर सिस्टम में कैप्चर किए जाते हैं। कैप्चर सिस्टम मीन्स एक स्कैनर, कोर बैंकिंग या कोई और एप्लीकेशन, जो भी उनके इंटरनल उनको वो यूज़ करते हैं। और ये स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड जो हैं वो डाटा और इमेज के ये बैंक को प्रोवाइड किए जाते हैं। और सिक्योरिटी और सेफ्टी और डाटा के मिसयूज़ ना होने के लिए या इमेजेस के मिसयूज़ ना होने के लिए दिस सिस्टम इज़ एंड टू एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होता है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है, कलेक्टिंग बैंक डाटा सेंड करता है और जो कैप्चर्ड इमेज हैं उनको डिजिटली साइन करके, प्रॉपरली साइन करके, और आफ्टर एनक्रिप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग लोकेशन को या क्लियरिंग हाउस जिसे हम कह सकते हैं उसको ऑनवन ट्रांसमिशन के लिए भेज देता है, सो दैट पेइंग बैंक उसकी पेमेंट कर सके। फॉर द पर्पज ऑफ पार्टिसिपेशन, द प्रेजेंटिंग एंड पेइंग बैंक्स आर प्रोवाइडेड विद एन इंटरफेस गेटवे कॉल्ड द क्लियरिंग हाउस इंटरफेस। क्लियरिंग हाउस इंटरफेस, जिसे हम CHI कहते हैं, इसका पर्पज़ है प्रेजेंटिंग और पेइंग बैंक के बीच में एक इंटरफेस का काम करना, जिससे जो डाटा और इमेजेस हैं वो एक सिक्योर्ड और सेफ मैनर में पास ऑन हो सकें। क्लियरिंग हाउस जो डाटा प्रोसेस कर रहे हैं वो एक सेटलमेंट फिगर पे आता है और उसे इमेज और डाटा के साथ पेइंग बैंक को रूट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसको प्रेजेंटेशन साइकिल कहते हैं। पेइंग बैंक अपने CHI से वो इमेज और डाटा रिसीव करता है
और क्लियरिंग हाउस को पेमेंट को प्रोसेस कर देता है। पेइंग बैंक का CHI एक रिटर्न फाइल भी जनरेट करता है इन केस देयर इज़ एनी अनपेड इंस्ट्रूमेंट और चेक। ये रिटर्न फाइल बनाई जाती है पेमेंट बैंक से और ये प्रोसेस होती है क्लियरिंग हाउस के द्वारा क्लियरिंग सेशंस में। Here clearing cycle is complete once the presentation clearing and associated return clearing sessions are successfully processed. The entire essence of CTS technology lies in the use of image of checks instead of physical checks for payment processing. तो सारी CTS टेक्नोलॉजी का जो क्रक्स है वो ये है, वो सारी एक असेंशियल फैक्ट ये है कि इसमें इमेजेस का यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ चेक। देन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर क्लियरिंग थ्रू CTS। It is preferable to present instruments complying with CTS standards for clearing through CTS for faster realization। अगर CTS 2010 के स्टैंडर्ड्स पे इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होंगे तो उसकी क्लियरिंग जो है वो फास्टर होगी, जल्दी होगी। जो इंस्ट्रूमेंट्स CTS 2010 स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर रहे थे उनको वंस इन अ मंथ का ऑप्शन दिया गया था फ्रॉम September 1st of 2018 and that was also continued till December 31st 2018 at CTS grid centers, and even after that banks were presenting non-CTS instruments in express check clearing centers, that is ECCS. Now let's see whether this change of system is changed for customers also. The answer is no. There is no major change in the clearing process for customers. Customers who continue to use checks as at present, except to ensure the use of image friendly and colored inks while writing the checks. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है एज अ कस्टमर कि आपका जो चेक इशू हो रहा है दैट इज़ इमेज फ्रेंडली एंड कलर्ड इंक्स, आप उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो कस्टमर्स जो यूज़ टू हैं पेड इंस्ट्रूमेंट्स को रिसीव करने के लिए, वो भी अब चेक इमेजेस को रिसीव करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हाँ, चेक्स जिसमें मटेरियल फील्ड्स में, इंपॉर्टेंट फील्ड्स में ऑल्ट्रेशंस हों वो अब प्रोसेस नहीं होते हैं CTS सिस्टम में। कस्टमर्स को फ़ायदे क्या हुए हैं? बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। वन इज़ फिज़िकल मूवमेंट रुकने से, फिज़िकल मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के रुकने से क्लियरिंग साइकिल जो है वो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मूव हो रहा है इंस्टेड ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक। सेकेंड इज देयर इज़ नो फियर ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। अब चेक के खोने का चक्कर नहीं है, इमेज है वो सिक्योर्ड सिस्टम में जा रही है, दैट इज़ नॉट हैविंग एनी रिस्क ऑफ बीइंग लॉस्ट इन ट्रांजिट। इसके अलावा जोग्राफिकल लिमिटेशंस जो हैं, जुरिस्डिक्शन की लिमिटेशंस जो हैं वो रिमूव हो गई हैं। 55 से ज़्यादा आपके ग्रिड्स दिस MICR के सिस्टम में लोकेशंस थी, अब जो है वो सिर्फ 3 ग्रिड्स में रह गई हैं। एक नेशनल स्टैंडर्ड क्लियरिंग सिस्टम क्रिएट हो गया है जो कि नेशन वाइड पेमेंट्स को कैटर करता है। इससे जो प्रोसेसेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो यूनिफॉर्म हो गई हैं। ग्रिड बेस्ड CTS सिस्टम has all checks drawn on bank branches falling within the grid jurisdiction and they are treated as local checks. No outstation check collection charges, speed clearing charges to be levied. कोई भी कलेक्शन चार्जेस या आउटस्टेशन क्लियरेंस चार्जेस ये नहीं लगाए जाएंगे इफ़ कलेक्टिंग बैंक एंड पेइंग बैंक आर लोकेटेड विद इन द सेम ग्रिड। ग्रिड सेम होनी चाहिए चाहे लोकेशन उनकी अलग अलग सिटीज़ में भी क्यों ना हो।
CTS के फ़ायदे हैं कॉरपोरेट्स को इन केस दे आर रिक्वायरिंग फॉर द इंटरनल रिक्वायरमेंट they can be given images of checks by their bankers. CTS also brings elegance in the entire system of check processing, and also we can summarize that it has shorter clearing cycle, it has superior verification and reconciliation process, no geographical restrictions are there to jurisdiction, and operational efficiency for banks and customers are same, and the risk also has reduced, the operational risk with which is associated with paper clearing. And when we talk about the benefits to the banking system, it has reduced the cost dramatically, and because in the earlier system, the MICR machines were used, and now few grids minimize the investment in MICR machines and their related AMC cost. And also, the banks are benefiting from economies of scale as the grid CTS removes the need for establishing inward check processing infrastructure at various clearing locations. बैंक को इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिल रही हैं, जिससे ये जो प्रोसेसिंग है डिफरेंट सेंटर्स पे उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है. एंड बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द लोकल क्लियरिंग हाउसेस, नाउ ग्रिड क्लियरिंग इज देयर, देन सेटलमेंट आर settlement of various transactions in various clearing houses has been reduced to single settlement. अब बहुत सारे क्लियरिंग हाउसेस की जो सेटलमेंट है वो कम हो गई है और एक सेटलमेंट पे वो आ गए हैं, जिससे उन बैंक्स की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स भी कम हो गई हैं. अलॉन्ग विद दिस, CTS also results in other benefits in terms of reduction in check processing fees, reduction in operational overheads, and elimination of clearing differences and reconciliation issues, etc. बैंक्स में रिकन्सिलिएशंस के इशू रहते थे, वो भी अब कम हो गए हैं. Yes, in this system, if a customer desire to see physical check issued by him for any reason, as physical checks are retained by presenting banks and they do not move to the paying bank, इसलिए अगर कोई कस्टमर चाहता है तो इसकी इमेज, चेक की इमेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ड्यूली सर्टिफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड. उसको सर्टिफाई करते हैं कि ये इमेज है और उसको ऑथेंटिकेट करते हैं. In case customer desire to see physical check, it would need to be sourced from the presenting bank, for which a request has to be made. फिर भी अगर कोई चाहता है तो उसको प्रेजेंटिंग बैंक के पास से सोर्स करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा, और उसके लिए उसको एक रिक्वेस्ट अपने बैंक को देनी होगी. इसमें एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व है. और अगर हम वी टॉक अबाउट लीगल रिक्वायरमेंट्स, then presenting banks which truncate the checks need to preserve the physical instrument for a period of 10 years. तो 10 साल तक आपको उस चेक को, फिजिकल चेक को संभालना है, उसको रिकॉर्ड में रखना है. यूनिकनेस ऑफ द फिजिकल चेक टू बी कैप्चर्ड एंड इम्पार्टेड टू द चेक इमेज. CTS सिस्टम इंडिया में ये मैंडेटरी है कि आप प्रिस्क्राइब्ड इमेज स्पेसिफिकेशंस ही यूज़ करें. जो इमेजेस इन स्पेसिफिकेशंस को मैच नहीं करती हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो पेमेंट्स हैं वो इमेज के बेसिस पे होगी. तो इसलिए इमेज की क्वालिटी को इंश्योर करना मस्ट है. सिर्फ रिक्विजिट क्वालिटी की ही इमेजेस ही सिस्टम में मूव होती हैं,
और इस पे एक रिगरस क्वालिटी चेक रहता है एट द लेवल ऑफ कैप्चर सिस्टम एंड क्लियर सिस्टम इन इंटरफेस ऑफ द प्रेजेंटिंग बैंक। तो जहाँ उसको कैप्चर किया जाता है इमेज को, और जो इंटरफेस है प्रेजेंटिंग बैंक का, दोनों ही आपके बहुत रिगरस क्वालिटी चेक से काम करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है जिसमें इमेज क्वालिटी असेसमेंट होता है वो डिफरेंट लेवल्स पे होता है। प्रेजेंटिंग बैंक सबसे पहले तो कैप्चर के टाइम पे ही IQA का फॉलो करते हैं, इमेज क्वालिटी असेसमेंट। आफ्टर दैट एट द गेटवे बिफोर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू क्लियरिंग हाउस। तो गेटवे पे वो चेक होता है जो इमेज कैप्चर हुई है, जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं प्रेजेंटिंग बैंक के, वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं पेइंग बैंक को थ्रू क्लियरिंग चेक। तो जो पेइंग बैंक है वो अगर सेटिस्फाई नहीं है इमेज क्वालिटी से, then it can demand the physical instrument also before making the payment। और साथ ही CTS 2010 के जो न्यू चेक स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने इसमें कुछ मैंडेटरी और कुछ ऑप्शनल सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए हैं जो उसकी इमेज को यूनिक बना देते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो इमेज स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड हैं। जो इमेजेस हैं दे कैन बी ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल और कलर्ड। इन सब के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ब्लैक एंड वाइट इमेजेस लाइट होती हैं लेकिन वो सारे सटल फीचर्स को रिवील नहीं करती हैं, तो चेक के कुछ फीचर्स अनरिवील्ड रह जाते हैं। कलर्ड इमेजेस जो हैं वो आइडियल हैं लेकिन वो स्टोरेज और नेटवर्क बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होती है। ग्रे स्केल इमेजेस मिडवे हैं। इंडिया में CTS के अंडर ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट इमेजेस यूज़ होती हैं, और जब हम इमेज लेते हैं तो सामने फ्रंट में ग्रे स्केल और ब्लैक एंड वाइट और बैक में ब्लैक एंड वाइट, ये 3 तरह की इमेजेस ली जाती हैं। इमेज ली कैसे जाए? चेक की इमेज लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्कैनर्स हैं, स्कैनर्स लिए जाते हैं, और ये स्कैनर जो है फ़ोटोकॉपियर का भी काम करते हैं। इसमें जो लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो एक बहुत छोटे से पैसेज से पास होती है, और कुछ छोटे से सेंसर्स होते हैं जो रिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं हर पॉइंट से। लाइट की स्ट्रिप के हर पॉइंट से वो सेंसर्स रिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं। रिफ्लेक्शन के जो मेजरमेंट्स हैं वो हर डॉट पे कलेक्ट होते हैं जिसको हम पिक्सल्स कहते हैं। और ये इमेजेस जो कि ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल या कलर्ड होती हैं, उनमें कैसे पिक्सल्स जो हैं वो डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है। इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सारी इमेज मैप हो जाती है, जिसमें कुछ शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, लाइट हो या डार्क हो, डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द सोर्स। और ब्लैक एंड वाइट इमेजेस जो हैं उस केस में 2 कलर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कंट्रास्ट को। जो ब्लैक एंड वाइट इमेज है उसको हम बाइनरी इमेज भी कहते हैं। CTS सिस्टम में फिज़िकली चेक ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, इमेजेस ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इमेज और डाटा जो है उसको कैसे सिक्योर किया जाए? डाटा की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, नॉन रिप्रोड्यूशन एंड ऑथेंटिसिटी, ये सब प्रेजेंटिंग बैंक से पेइंग बैंक तक थ्रू क्लियरिंग हाउस ये इंश्योर किया जाता है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा।
और CTS जो है वो IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंगली कंप्लाइंट है और ये मैंडेटरी किया गया है कि प्रेजेंटिंग बैंक जो है वो साइंड इमेजेस भेजे विद डेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ। PKI दैट इज़ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थ्रू आउट यूज़ किया जा रहा है पूरे एंटायर साइकिल में, स्टार्टिंग फ्रॉम कैप्चर सिस्टम, प्रेजेंटेशन थ्रू प्रेजेंटिंग बैंक एंड क्लियरिंग हाउसेज एंड ऑल्सो पेइंग बैंक। PKI के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडियन एक्ट्स और नोटिफिकेशन ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इसके अकॉर्डिंग यूज़ होने चाहिए। चेक्स का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, मींस चेक्स को स्टैंडर्डाइज किया गया है इन टर्म्स ऑफ साइज़, MICR बैंड, क्वालिटी ऑफ पेपर। ये सब की फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ किया गया है चेक्स के मैकेनाइजेशन में। चेक की प्रोसेसिंग में जो हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, उसमें हम चाहते हैं, बैंकिंग सिस्टम चाहता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो। इसके लिए जो बैंक्स डिफरेंट पैटर्न्स के डिज़ाइन के जो चेक्स फॉर्म्स जो हैं वो इशू कर रहे थे, चाहे वो सेगमेंटेशन के लिए हों, ब्रांडिंग के लिए हों या आइडेंटिफिकेशन के लिए हों, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स का होना ज़रूरी है ताकि चेक का मिसयूज़ नहीं हो, टैम्परिंग नहीं हो, ऑल्ट्रेशन नहीं हो, ताकि CTS जैसे फंक्शंस पॉसिबल हो सकें। अब जब मल्टी सिटी चेक्स हैं, चेक्स पेबल एट पार एट एनी ब्रांच ऑफ बैंक हैं, तो उस केस में कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर कॉमन मिनिमम फीचर्स का होना ज़रूरी है, चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे इशूइंग हो, चाहे चेक्स की हैंडलिंग हो। बैंक्स को कुछ मिनिमम सिक्योरिटी फीचर्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं ताकि कस्टमर जो है उसको चेक्स को यूज़ कर सके और अक्रॉस द इंडस्ट्री। इसके साथ साथ बैंक भी कुछ फीचर्स को सजेस्ट कर रहा है जो कि बैंक की नीड्स के अकॉर्डिंग और उसके रिस्क परसेप्शन के अकॉर्डिंग इसमें इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। तो मिनिमम फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, इससे ना सिर्फ यूनिफॉर्मिटी होगी सारे चेक्स फॉर्म की और जो भी बैंक कंट्री में इशू कर रहे हैं, इसके साथ ही जो प्रेजेंटिंग बैंक्स हैं और जो पेइंग बैंक्स हैं वो ज़्यादा आसानी से स्क्रूटनाइज कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे चेक्स को, जहाँ पर आप इमेज बेस्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी फीचर्स, क्योंकि जो चेक्स में जो फ्रॉड्स होते हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में ही जो चेक की प्रोसेसिंग है, जो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग है बाय यूज़ ऑफ ऑप्टिकल और इमेज करेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिक्योरिटी फीचर्स इंक्लूड किए जाएं और इन्हीं सब चीज़ों को ही CTS 2010 स्टैंडर्ड्स में रखा गया है। जो चेक्स इस स्टैंडर्ड्स को, CTS 2010 स्टैंडर्ड्स को नहीं कंप्लाई करते हैं, उनका सितंबर 2018 में 18 ऑनवर्ड्स वंस इन अ मंथ, दैट इज़ मंथली क्लियरिंग के लिए प्रपोज किया गया था। When we talk about prescription relating to alteration and correction, ऑल्ट्रेशन और करेक्शन ऑन चेक्स को बिल्कुल ही प्रोहिबिट किया गया है ताकि चेक्स रिलेटेड फ्रॉड्स ना हो सके। और जो चेक्स हैं अदर देन डेट वैलिडेशन कोई भी ऑल्ट्रेशन या चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर पेई का नाम है, अमाउंट इन फिगर जिसे हम कर्टसी अमाउंट कहते हैं, या लीगल अमाउंट दैट इज़ अमाउंट इन वर्ड्स, इसमें या अगर कोई चेंज होता है तो आपको वो जो चेक है वो फ्रेश चेक इशू करना पड़ेगा। इससे जो बैंक्स हैं उनको हेल्प मिलती है कि अगर कोई फ्रॉडुलेंट ऑल्ट्रेशन हुआ है तो उसको पहचान जाते हैं। इस प्रोहिबिशन से जो चेक्स क्लियर हो रहे हैं वो
इमेज बेस्ड CTS में ही काम करते हैं। जो फिज़िकल एक्सचेंज में जो चेक्स यूज़ होते हैं, क्लियर होते हैं, उसमें ये चेक्स प्रोहिबिट नहीं किए गए हैं। कस्टमर्स को भी प्रिकॉशन रखना चाहिए कि वो CTS 2010 चेक्स ही यूज़ करें, जो ना सिर्फ इमेज फ्रेंडली हैं बल्कि उसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी ज़्यादा हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बैंक से उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें इमेज फ्रेंडली कलर्ड इंक्स को इस्तेमाल करें जब आप चेक्स लिखते हैं, और कोई ऑल्ट्रेशन या करेक्शन अवॉइड करें। इन केस देयर इज़ एनी ऑल्ट्रेशन और करेक्शन, you have to use another leaf, another new check. Banks should also exercise care while affixing stamps on the check forms. जब बैंक में जो स्टैम्प लगा रहे होते हैं उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये स्टैम्प्स लग रहे हैं वो मटेरियल पोर्शन जैसे डेट, पेई का नाम, अमाउंट, सिग्नेचर इन पे ना हो। नेसेसरी टू इंश्योर that all essential elements of a check are captured in an image during the scanning process. तो वो सारी essential elements हैं वो इमेज में कैप्चर होनी चाहिए। तो इसका बैंक्स और कस्टमर्स दोनों ही ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं चेक्स के बारे में। चेक्स जो हैं वो क्या हैं। चेक्स एक बहुत ही पॉपुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपका सेविंग और करंट अकाउंट है बैंक में तो आप चेक इशू कर सकते हैं अपने नाम पे या किसी और के नाम पे, और बैंक को डायरेक्शन दे सकते हैं टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द पर्सन नेम्ड इन द चेक। चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज भी कंसिडर किया गया है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें जो ड्रॉई है वो हमेशा बैंक रहेगा। एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, check may be defined as a bill of exchange drawn on a specific banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. एक्चुअली चेक एक ऑर्डर है जिसमें अकाउंट होल्डर बैंकर को डायरेक्शन दे रहा है कि वो पे करे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑन डिमांड टू और टू ऑर्डर ऑफ द पर्सन नेम देयर इन और टू द बेयरर। तो जिसको वो कहे उसे, या जो व्यक्ति जिसका नाम लिखा है उसे या बेयरर को बैंक को पेमेंट करना है ऑन डिमांड। अभी हम इसमें देख रहे हैं HDFC बैंक का एक चेक का सैंपल दिया हुआ है। ऊपर बैंक का लोगो बना हुआ है, नाम लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में अकाउंट नंबर के लिए बॉक्सेस बने हुए हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है पे टू द पर्सन। रुपीज़ फिगर्स में आपको लिखना है अमाउंट और दिस वर्ड्स में। उसके बाद एक कॉलम बना हुआ है जहाँ रूपी का साइन बना हुआ है, वहाँ पर आपको आप देख सकते हैं यहाँ अमाउंट आपको फिल करना है। नीचे सिग्नेचर के लिए एक स्पेस बना हुआ है, उसके ऊपर आपको उस बॉक्स के ऊपर आपको साइन के लिए जगह दी गई है। नीचे बैंक के डिटेल्स दी गई हैं, कुछ कोड्स दिए गए हैं आपको। सेक्शन 6 जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है बैंक चेक को। इसके अकॉर्डिंग चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें 2 एडिशनल कंडीशंस हैं। वन इज़ इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर एंड इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है, सिर्फ इसमें एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप बैंक को चेक के लिए ऑर्डर इशू कर रहे हैं, उसमें उसे एक्सेप्टेंस नहीं देनी है। सेक्शन 31 RBI का है, वो डिफ़ाइन करता है कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी वो आप पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई प्रॉमिसरी नोट कर सकते हैं, और ना ही बैंक ड्राफ्ट पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ चेक है जो कि पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड हो सकता है। When we have to understand parties to a check, there are 3 parties. One is drawer, जो चेक लिख रहा है, ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉई जिसके ऊपर चेक लिखा जा रहा है, और पेई जिससे पेमेंट की जाएगी, जिससे चेक पेबल होगा। ये ड्रॉर खुद भी हो सकता है या कोई और पर्सन भी हो सकता है। होल्डर इज़ आइदर द ओरिजिनल पेई और एनी अदर पर्सन टू हुम द पेई हैज़ एंडोर्स्ड द चेक। जिसे चेक की पेमेंट मिलेगी वो, या पेई ने जिसको एंडोर्स कर दिया है वो पर्सन होगा। बियरर चेक में बियरर इज़ द होल्डर एंड द एंडोर्सर
when holder endorse a check to someone else, to anyone else, then that person becomes a endorser. Endorsee is a person to whom the check is endorsed. तो चेक में कुछ जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो हैं कि ये हमेशा बैंकर पे ड्रॉ किया जाएगा, जहाँ पर ड्रॉर का अकाउंट है, पेबल ऑन डिमांड होगा, इसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होगी। जो चेक्स हैं वो ड्रॉर अपने ऊपर भी लिख सकता है, जिसे हम सेल्फ चेक कहते हैं। बैंकर जो है वो सिर्फ ड्रॉर को लायबल है, किसी भी होल्डर को बैंकर के अगेंस्ट कोई रेमेडी नहीं मिली हुई है अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है। चेक यूजुअली वैलिड रहता है 3 मंथ्स के लिए इंडिया में, लेकिन अगर वो पोस्ट डेटेड है या एंटी डेटेड है तो उस केस में भी वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। इसमें कोई स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। चेक्स को हम कुछ कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करते हैं। पहला है ओपन चेक और क्रॉस चेक, दूसरा है बियरर चेक एंड ऑर्डर चेक, तीसरा एंटी डेटेड एंड स्टेल चेक और पोस्ट डेटेड चेक। ओपन चेक से हम समझते हैं कि ओपन मीन्स व्हेन इट इज़ नॉट क्रॉस्ड, इसको क्रॉस नहीं किया गया है और इसको काउंटर पे इसकी पेमेंट या इसको कैश करवाया जा सकता है। होल्डर ऑफ ओपन चेक पेमेंट रिसीव कर सकता है जहाँ पर ओपन चेक में ये क्रॉस नहीं है और इसको काउंटर पे आप कैश करवा सकते हैं, बियरर इसको चेक कैश करवा सकता है, इसको आप किसी और को पास ऑन कर सकते हैं। क्रॉस चेक में यू क्रॉस अ चेक व्हेन यू थिंक ओपन चेक इज़ अ रिस्की प्रपोजिशन, सो टू अवॉइड द रिस्क यू इशू क्रॉस चेक। इसमें पेमेंट जो है वो आपकी काउंटर पे नहीं होगी, आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। जहाँ पर क्रॉस किया जाता है वहाँ आप अकाउंट पे ही या नॉट नेगोशिएबल लिख देंगे। 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं हम एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर में और उसमें अकाउंट पे ही लिख देते हैं। देन इज बियरर चेक। बियरर चेक वो चेक है जो किसी भी पर्सन को जो उसको प्रेजेंट करता है उसको पेमेंट दिलवा देता है। ये सिर्फ डिलीवरीज में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके लिए कोई एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर चेक इज़ द चेक इन विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ ऑर्डर्ड टू बी पेड। यहाँ पर बियरर वर्ड हट जाएगा और उसकी जगह पेई का नाम आप लिख देंगे और चेक के पीछे आप साइन कर देंगे। देन इज़ एंटी डेट चेक। चेक जिसमें ड्रॉर वो डेट मेंशन करता है जो प्रेजेंटिंग डेट और प्रेजेंटिंग से पहले है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20 तारीख को ये चेक इशू कर रहे हैं और उस पर डेट आप 5 मई की डाल रहे हैं। देन इज स्टेल चेक। वो चेक जो स्टेल हो गया, पुराना हो गया। किसी भी चेक को विद इन 3 मंथ्स आप बैंक में ले जाकर उसकी पेमेंट ले सकते हैं, बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं आप। लेकिन अगर इसके बाद अगर वो प्रोसेस होता है तो वो स्टेल चेक होता है। तो उसका जो स्टिपुलेटेड पीरियड है 3 मंथ्स का वो ख़त्म हो गया है, उसके बाद अगर वो चेक प्रेजेंट हुआ है तो दैट विल बी स्टेल चेक। पोस्ट डेटेड चेक। Checks on which drawer mention a date which is subsequent to the date on which it is presented. अगर आप 8 मई को एक चेक इशू करते हैं जिस पे 25 मई की डेट है तो ये पोस्ट डेटेड चेक है। बैंक इसकी पेमेंट 25 मई को या उसके बाद ही करेगा। तो बाद की डेट जब हम डालते हैं तो वो पोस्ट डेटेड चेक रहता है। म्यूटिलेटेड चेक। अगर कोई चेक 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में फट गया हो और उसे
पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाए तो वो म्यूटिलेटेड चेक है। बैंक इसकी पेमेंट नहीं करेगा विदाउट गेटिंग कंफर्मेशन ऑफ द ड्रॉर। लेकिन अगर वो चेक कॉर्नर से फटा हुआ है और कोई मटेरियल फैक्ट मिटाया नहीं गया है या कैंसिल नहीं किया है तो उस केस में इस चेक की पेमेंट बैंक कर सकता है।